السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر 5۔ جب میں نے ایک فلم ساز سے رابطہ کیا تو اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ تمہیں اس صورت میں چانس مل سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ راتیں کالی کرو۔ پھر ایسا ہی ایک ٹی وی پروڈیوسر نے بھی کہا۔ پھر میں قدم قدم پر لٹتی رہی۔ پھر میں نے دیکھا کہ شو بز کی دنیا ایک گندا تالاب ہے، ساری مچھلیاں گندی ہیں۔ کوئی نامور اور معروف اداکارہ ایسی نہیں جس نے اپنی آبرو کو بھینٹ نہ چڑھایا ہو۔ اب شوبز اور معاشرے میں آبرو کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ سکون سے زندگی گزاروں۔ رجنی نے میری کتنی تصویریں تمہیں دی ہیں؟ کل 7 عدد ہیں، میں نے کہا، اور تم 7 مختلف مردوں کے ساتھ ہو، اس میں ایک معروف فلمی ہیرو بھی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے ہر ماہ لگی بندی رقم وصول کرو؟ یہ ساری تصویریں اور نیگیٹیوز مجھے دے دو۔ وہ بولی، تم نے رجنی سے جس قیمت پر خریدی ہیں میں اسے دگنی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ کیا یہ سودا کرو گے؟ لیکن تمہارے ہاتھ تصویریں فروخت کرنے کے بعد ایک ٹکٹ میں 2 مزے کہاں سے ہو سکیں گے؟ میں نے کاروباری لہجے میں کہا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تصویریں خریدنے کے بعد بھی میں تمہارا دل بہلاتی رہوں گی، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، تم مجھے ٹھینگا دکھا دو گی، میں نے ہنس کر کہا۔ تم اس گندگی کی کیا قیمت دے سکتی ہو؟ تم نے جو قیمت رجنی کو دی ہے اس سے دگنی قیمت مجھ سے لے لو۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، بتاؤ رجنی کو تم نے کیا قیمت دی؟ تم سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی اور تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں اس سے کہیں سنجیدہ ہو گیا، شاید تم بے ہوش بھی ہو جاؤ۔ کیا تم نے اس کی قیمت لاکھوں میں دی ہے؟ سروجنی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مگر میں تو لاکھوں نہیں دے سکتی۔ سنو، یہ کاروباری باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، میں نے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم چائے بنا کر پلاؤ؟ اس کمینی نے تم سے غلط بیانی کی ہوگی کہ میں ہر ماہ اسے بڑی رقم دیتی ہوں اور میرے پاس بہت دولت ہے، وہ بولی۔ ہاں، اس نے یہ بات تو کہی تھی، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ چائے بناؤ، لیکن تم نے انسنی کر دی۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ ان تصویروں کی کیا قیمت چاہتے ہو؟ وہ بولی، تاکہ میں چائے بناتے ہوئے سوچتی رہوں، کوئی فیصلہ کروں۔ میں جو قیمت چاہتا ہوں وہ شاید تم دے نہ سکو، تاہم میں بڑا دل پھینک قسم کا بلیک میلر ہوں۔ جلدی سے چائے بنا لاؤ۔ اگر تمہارے بس میں ان تصویروں کی ادائیگی نہ ہوئی تو پھر ہم چائے پیتے وقت کوئی راہ نکال لیں گے، میں نے کہا۔ وہ میرے بازو کے حلقے سے نکلی اور خواب گاہ کی طرف بڑھی تو میں نے کہا، کیا تم نے خواب گاہ میں کچن بنا رکھی ہے؟ جی نہیں۔ اس نے رک کر گھوم کر میری طرف دیکھا اور بولی، میں نائٹی اتارنے جا رہی ہوں۔ اگر نائٹی اتارنا ہے تو یہاں بھی اتار سکتی ہو، میں نے شوخی سے کہا۔ میرا دل خوش کرنا ہے، خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ میں نائٹی اتار کر گاؤن پہن کر آتی ہوں، سروجنی بولی، اور پھر میں کچن میں جا کر چائے اور ناشتہ بناؤں گی۔ میرا حکم نہیں بلکہ میری درخواست ہے کہ تم نائٹی میں ہی رہو، میں نے کہا، اس لیے کہ ان شعلوں کو دیکھتا رہوں جو دل خوش کر رہے ہیں۔ پھر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تپائی پر کچھ فلمی رسالے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ رسالہ اٹھا لیا جس پر اس کی رنگین تصویر سرک ورک چھپی ہوئی تھی۔ اندر ایک گوشہ اس کے متعلق چھپا تھا۔ اس میں اس کی 10-12 رنگین تصویریں ہر زاویے سے چھپی ہوئی تھی۔ ان تصویروں میں بڑی بے حجابی تھی۔ اس کی یہ تصویریں اس طرح چھپائی گئی تھی کہ اس کا جسم بڑا سنسی خیز تھا، وہ بے حد سیکسی بھی تھی۔ وہ فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں سائیڈ رول میں آتی تھی، لیکن اس میں بے حجابی تھی، اور اس کی ایسی تصویریں تھیں جو جوان مردوں اور لڑکوں کو بھی رسالہ خریدنے پر مجبور کر دیں۔ میں کوئی 20 منٹ تک ان تصویروں میں غرق رہا اور اس پر جو مضمون لکھا گیا تھا میں نے اسے بھی پڑھا۔ 20 منٹ میں وہ چائے اور ناشتہ بنا کر لے آئی تھی۔ میں نے اسے صرف چائے کی خواہش اظہار کی تھی، لیکن وہ میرے لیے ناشتہ بنا کر لے آئی، میرے اور اپنے لیے، اور اس نے 2 انڈوں کا ہاف فرائی، ٹوسٹ، مکھن، جام جیلی اور ملائی بھی تھی، چائے بھی تھی۔ وہ ٹرے میں لائی تھی اور اس نے ٹرے تپائی پر رکھ دی۔ تپائی کے نیچے اخبار بھی تھے اور جس میں شانتی کے قتل کی خبر بھی چھپی ہوئی تھی۔
میں نے ناشتہ کرتے وقت دانستہ قتل کے موضوع کو نہیں چھیڑا، البتہ چائے پیتے وقت میں نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کر کے کہا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ تم نے شانتی کو قتل کیوں اور کس لیے کیا، جبکہ شانتی اور اس میں گہرے تعلقات تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ جو کہ اخبار میں چھپا اور چھپ چکا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ گوتم نے یہ قتل تمہاری خاطر کیا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اور تم اس سے انکار نہیں کر سکتی ہو۔ میری خاطر؟ وہ کس لیے؟ اور اس کے ہاتھ سے پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ میرا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن تعلق ہے ضرور۔ میں نے کہا، واردات سے نہیں بلکہ قاتل سے ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں، قاتل نے تمہارے لیے یہ قتل کیا۔ کیا تعلق؟ سروجنی کا چہرہ زرد پڑتا گیا۔ میں تو قاتل کو جانتی تک نہیں، تم مجھے کیوں ملوث کر رہے ہو؟ قتل کی واردات سے کچھ دن پہلے تک تم قاتل کو نہیں جانتی تھی، لیکن بعد میں قتل سے 2-1 دن پہلے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا، اور وہ تمہاری سہیلی کامنی کا بھائی ہے، اور تم نے ایک دن کامنی کو اعتماد میں لے کر بتایا کہ تمہاری جان کس اذیت میں مبتلا ہے۔ تم نے کامنی سے کہا کہ تم اپنے بھائی سے کہو کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلائے۔ گوتم نہیں مانا، کیونکہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر تم نے ایک شام اسے بلایا اور اپنے جسم کا نذرانہ پیش کیا۔ 2 راتوں تک تم اس پر اس قدر گرم جوشی و رافتگی اور والہانہ پن سے مہربان ہوتی رہی کہ گوتم کو تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ رجنی شانتی کی پڑوسن تھی۔ مقتولہ شانتی سے گوتم کے تعلقات تھے۔ شانتی بظاہر ملازمت کرتی تھی اور اس عمارت کے لوگ جانتے تھے کہ وہ اکیلی رہتی ہے۔ اس کے ہاں کسی کی آمد و رفت نہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ وہ بہت ہوشیار اور محتاط عورت تھی۔ وہ 18 سے 20-22 برس کے خوبصورت، صحت مند اور دراز قد لڑکوں کا شکار کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جو لڑکا اس کے جال میں پھنس جاتا، اس کا نکلنا ناممکن ہوتا، لیکن وہ جی بھرنے کے بعد دوسرا شکار تلاش کرتی۔ گوتم بھی اس کا نیا شکار تھا۔ کسی کے بھی اس کے ہاں آمد و رفت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب تم نے گوتم کو اپنا دیوانہ بنانے کے بعد اس سے درخواست کی کہ وہ تمہیں اس اذیت ناک عذاب سے نجات دلائے، تو گوتم تیار ہو گیا۔ تم نے رجنی کو دیکھا ہوا تھا اور پھر گوتم کو اس کے بارے میں کسی نہ کسی طرح معلومات حاصل کر لی تھی کہ رجنی گھر سے کب اور کتنی دیر تک غائب رہتی ہے۔ پھر اس نے ایک کفل ساز کو رجنی کے گھر لے جا کر یہ کہہ کر ڈپلیکیٹ چابی بنوائی کہ اس کی چابی کھو گئی ہے۔ دوسرے دن رات کو وہ شانتی کے ہاں گیا۔ جب شانتی سرفراز ہونے کے بعد گہری نیند سو گئی، تب وہ شانتی کے فلیٹ سے نکلا۔ تب رات کے 2 بج چکے تھے۔ وہ رجنی کے ہاں داخل ہوا۔ جس وقت وہ الماری کھول رہا تھا، رجنی کی آنکھ کھل گئی اور رجنی نے اس کی 2 تصویریں چوری کرتے ہوئے اتار لیں۔ رجنی گوتم کو شانتی کے فلیٹ میں آتے جاتے دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ اسے شکار کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اتفاق نے اسے پھنسا دیا۔ رجنی نے اسے کھلونا بنا لیا۔ گوتم شانتی کا دیوانہ تھا۔ رجنی کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اس نے اس لیے گوتم کو قتل کے کیس میں پھنسا دیا۔ اوہ بھگوان! سروجنی بھونچکی ہو گئی۔ چند لمحوں تک اس پر سناٹا سا طاری رہا، اور جب بولی تو اس کی آواز ویران سی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ تم تو بہت کچھ جانتے ہو۔ میں تو بہت ساری باتیں نہیں جانتی تھی۔ گوتم نے شانتی کو کس لیے قتل کیا، یہ ایک معمہ ہے، میں نے کہا۔ ویسے گوتم نے رجنی کو قتل نہیں کیا ہے اور اس کے ہاتھ صاف ہیں۔ اس کا قاتل کوئی اور ہے۔ لیکن میں نے اخبار میں جو قتل کی واردات کی روداد پڑھی ہے، اس میں سارے شواہد گوتم کے خلاف ہیں، سروجنی نے کہا۔ رجنی عینی گواہ ہے، اور پھر اس کے ہاتھ کے نشانات بھی ٹھوس ثبوت ہیں۔ وہ ان شواہد کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ وہ بچ نہ سکے گا۔ لیکن وہ قاتل نہیں ہے، میں نے کہا۔ قاتل کوئی اور ہے۔ رجنی نے اسے رکابت میں پھنسا دیا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے بچ جائے گا، وہ افسردگی سے بولی۔ وہ میری سہیلی کا بھائی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس بری طرح پھنس جائے گا۔ وہ کیسے بچ جائے گا یہ تمہیں بعد میں معلوم ہوگا، میں نے کہا۔ اب ذرا تصویروں کو موضوع بنائیں، سودے کی بات کریں۔ ہاں، سروجن نے سر ہلا دیا۔ تم نے رجنی کو کیا قیمت ادا کی اور تم مجھ سے کیا قیمت چاہتے ہو؟ جلدی سے بتاؤ۔ میں نے اس کی قیمت، میں زیر لب مسکرا دیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔
अगर तुम एक अंदाजे से इसकी कीमत बता दो तो मैं तुम्हें शायद मुफ्त में तस्वीरें दे दूं। तस्वीरें हासिल करने का ये एक सुनहरी मौका है। 2 लाख रुपए। उसने कुछ देर तक सोचने के बाद मेरी तरफ देखा और वो उससे 1 पैसा भी कम लेने से रही। वो बहुत कमीनी है। 2 लाख रुपए। मैंने उसका चेहरा नज़रों की गिरफ्त में लेकर कहा, ये तुमने क्यों कर और कैसे अंदाज़ा किया? इतनी ज़्यादा कीमत? वो इससे कम कीमत इसलिए नहीं ले सकती कि मैं उसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। अगर उसने 2 लाख में भी सौदा किया है तो घाटे का सौदा है। जाने क्यों मुझे अब तक यकीन नहीं आया कि उसने मेरी तस्वीरें तुम्हारे हाथ फरोख्त कर दी। वो बोली, ये घाटे का सौदा कहाँ है? मैंने कहा, अगर उसने तस्वीरों के इवज़ लाखों रुपए लिए तो फिर वो फ़ायदे में रही, इसलिए कि उसने मेरी ज़ात से लाखों कमाए और मज़ीद कमा सकती थी। सरोजनी ने कहा, इसमें उसके फ़ायदे की बात क्या हुई? वो मुझे इस्तेमाल करती थी। कई बार किसी अय्याश तबा सरमायादार के पास भेज देती थी। वो उनसे हज़ारों एक रात के वसूल करती और मुझे सिर्फ 2-1 हज़ार रुपये दे देती थी। वो मेरी तलब मर्दों में बढ़ाने के लिए यह करती थी कि उसने मेरी दर्जनों नीम उरियाँ और नामुनासिब तस्वीरें उतार कर रखी हुई थी और उन्हें शोबिज़ मैगज़ीन में छपवाती थी। जब किसी मॉडल या अदाकारा की तस्वीरें अखबारात और शोबिज़ के मैगज़ीन में छपती हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। दरअसल रंगीन तस्वीरें हर किसी को बहुत मुतासर करती हैं और फिर हवस परस्त राब्ता करते हैं। उस रिसाले में मेरी तस्वीरें गुज़श्ता माह छपी थी। तब से मेरी मांग में इजाफ़ा हुआ है। वो एक टीवी कमर्शियल के अलावा 10 हवस परस्तों ने मुझसे राब्ता करके तारीखें ली हुई हैं। ऐसी सूरत में क्या उस कमीनी और जलील ने 2 लाख रुपए में सौदा किया है तो क्या घाटे का सौदा नहीं किया है? और फिर तुम भी मेरी ज़ात से लाखों रुपए कमाओगे, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि उसने मेरी तस्वीरें फ़रोख्त नहीं की हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ऊपर वाले जेब में सिर्फ एक तस्वीर रख ली थी। बाकी 6 तस्वीरें और 7 तस्वीरों के नेगेटिव लिफाफे में और जेब में थे। मैंने एक तस्वीर दिखाने का सोचा। जेब से वही एक तस्वीर निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई जिसमें वो एक मर्द के साथ मौजूद थी। वो तस्वीर देखकर उछल पड़ी और उसने तस्वीर मेरे हाथ से झपट ली और फिर वो तस्वीर देखकर बोली, तुम इस बूढ़े को पहचानते हो? हाँ। मैंने असबात में सर हिलाया। ये एक लीडर है जो बड़ा पासदार, आवाम का हमदर्द है और जनता उसकी पूजा करती है। ये बूढ़ा मेरे साथ कैसी हैवानी हरकतें कर रहा है? वो बोली, ये है सियासी लीडरों का असल घिनौना और न चेहरा। उसका लहजा नफ़रत अंगेज़ हो गया। मैं क्या बताऊं, कैसे कैसे पोतर लोगों से वास्ता पड़ा है। इनमें और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, ये तस्वीर तुम मुझसे कितने में ख़रीदोगी? मैंने कारोबारी लहजे में कहा, ये बड़ी नायाब और बेहद कीमती तस्वीर है। तुम एक नहीं पूरी 7 तस्वीरों की बात कर रहे थे। उसने मुझे तेज़ नज़रों से घूरा। अब एक तस्वीर की बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कब कहा कि 7 तस्वीरें यक मुफ्त फ़रोख्त कर दूंगा? मैं बोला, ये एक तस्वीर 10 लाख रुपए में ख़रीदोगी? 10 लाख रुपए? वो इस तरह उछल पड़ी कि जैसे उसे बरकी झटका लगा हो। तुम्हारी अक्ल ठिकाने है? मैं सारी तस्वीरों के 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकती और तुम हो कि सिर्फ एक तस्वीर के 10 लाख मांग रहे हो। मेरी बनो। मैंने यकलख्त उसे बाजू में भर लिया और खासी देर तक उसके चेहरे पर झुका। उसके होंठों की मिठास अपने होंठों में जज़्ब करता रहा। फिर उससे कहा, इस तस्वीर से तुम हर एक माह 1 से 2 लाख रुपए कमा सकती हो। कहो तो मैं कमा कर दिखाऊं। वो कैसे? उसने हैरत से अपनी पलकें झपकाईं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। क्या ये बहुत आसान है? नहीं नहीं। जब ये तस्वीर तुम उस लीडर को दिखाओगी और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मैंने कहा, और उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं कि इस हालत में उसकी तस्वीर खींची गई है। और फिर रजनी को भी इस बात का ख्याल नहीं आया, वरना वो ये तस्वीरें 10 लाख में भी ना देती और उस लीडर से लाखों रुपए वसूल कर चुकी होती। उसका सारा ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ रहा। तुम्हारे हाथ ये सोने की कान लगी है। वो हर माह 1 से 2 लाख रुपए कैसे दे सकता है? सरोजनी ने कहा, ये कोई मामूली रकम तो है नहीं जो आसानी से दे दे। क्यों नहीं दे सकता? उसका बाप भी देगा। मैंने कहा, ये जो रतन सिंह है कोई मामूली आदमी नहीं। इस वक्त वो वज़ीर भी है और हर 2 महीने बाद जो इलेक्शन होने वाला है उसमें खड़ा हो रहा है और बड़ा मुअज़्ज़ज़ और बाइज़्ज़त समझा जाता है। फिर अरबपति है। उसकी फैक्ट्रियां और कारखाने भी हैं। उसके 2 दामाद हैं। एक दामाद फ़ौजी अफसर है, दूसरा दामाद बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी बहू साबिक़ सदर की बेटी है।
बेटा उसकी सियासी पार्टी का लीडर है और वो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। तुम इसका एक प्रिंट उसे बेच देना और उस प्रिंट में बनवा कर ला दूंगा, वरना दूसरा फ़ायदा उठा लेगा। वो तुम दोनों को ब्लैकमेल करेगा। ये इज़्ज़तदार लोग बदनामी से बहुत डरते हैं, क्योंकि नेकनामी सिर्फ एक बार मिलती है। वो तुम्हारा हर मुतालबा मान लेगा। क्यों ना मानने से उसकी और उसके घराने की इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अब तुम बताओ, क्या ये तस्वीरें सोने की दुकान नहीं है? तो सही, वो पस्त आवाज़ में बोली। तुम इस तस्वीर के 10 लाख रुपए मांग रहे हो। ये बहुत बड़ी रकम है, ये ज़्यादती की बात है। ऐसा तो ना करो। अगर तुम ये तस्वीर मुझसे 10 लाख रुपए में ख़रीद लो तो मैं तुम्हारे वारे न्यारे कर दूं, मैंने कहा, और उसके बदले 1 करोड़ की रकम ला दूं। तुम्हें यह तस्वीर उस लीडर के हाथ फ़रोख्त कर देना होगी। 1 करोड़ मिलेंगे तुम्हें, और तो तुम मुझे क्या कमीशन दोगी? तुम यक मुक्त बड़ी रकम वसूल कर लोगी तो यह ज़्यादा मुनासिब होगा। उसके मुकाबले में हर माह 2 लाख वसूल करने के झंझट में पड़ जाओ। अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों नहीं इस लीडर से इतनी बड़ी रकम वसूल कर लेते? और उसने कहा, और 1 करोड़ की रकम कम नहीं होती है। बात मेरी है और तुम्हारी और, मैंने कहा, और यूं भी मैं तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूं। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास 10 लाख रुपए की रकम नहीं है, उसने कहा। मैं 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकती। ये मेरा बैंक बैलेंस है, तुम भी क्या याद करोगी? मैंने उसके रुखसार का बोसा लेकर कहा, मैं तुम्हें सारी तस्वीरें बिल्कुल मुफ्त में दे रहा हूँ। क्या? वो तहय्युर ज़दा लहजे में बोली तो फरते खुशी से उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सच कह रहे हो? मैंने जेब से लिफाफा निकाला और उसमें से सारी तस्वीरें एक एक करके निकाली और तपाई पर रख दी, और नेगेटिव्स भी। वो तस्वीरें देखकर खुशी से इतनी बेकाबू हुई कि उसने मेरी गर्दन में अपनी बाहें हमायल कर दी। और फिर बात इतनी बड़ी कि हम दोनों बेडरूम में कब और किस तरह पहुँचे कुछ खबर नहीं रही। होश आया तो निशात अंगेज लम्हात से निकलकर हकीकी दुनिया में आ गए। जब हम दोनों बेडरूम से निशस्तगाह में आए तो उसने कहा, अगर तुम रजनी से 2-1 लाख में तस्वीरें खरीदी हैं तो रकम मुझसे ले लो। तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही खूबसूरत है, मैंने कहा। कोई और होती तो रकम देने की बात ना करती। मैंने ये तस्वीरें खरीदी नहीं हैं, मुफ्त में मिली हैं। सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि और भी बहुत सारी तस्वीरें। मैंने पंछी के पर काट दिए हैं, अब वो उड़ नहीं सकता। और हाँ, मेरी बात सुनो, मैं शायद कभी आऊँ या नहीं, इसलिए कि मैं बहुत मसरूफ़ तरीन आदमी हूँ। इनमें से 3 तस्वीरें करोड़पति, बाइज़्ज़त और मारूफ लोगों की हैं, और तुम खुद उनसे मामला तय करो और यक मुश्त रकम ले लो, और फिर तुम फिल्म इंडस्ट्री और टीवी छोड़कर किसी शरीफ आदमी से शादी कर लो। सारी ज़िंदगी जलील होने से बेहतर है कि अपने पति की सेवा करो और उसे कभी अपने माजी के बारे में कुछ ना बताना। वो तुम्हारी दौलत के बारे में पूछे तो कह देना कि विरसा में मिली है। और हाँ, तुम सच्चे दिल से अपने पति की सेवा करोगी तो भगवान शायद तुम्हारे सारे पाप माफ़ कर दे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तमाम तस्वीरें रजनी जैसी औरत से मुफ्त मिल गईं। वो बड़ी शश्तर हो रही थी। क्या ये नामुमकिन बात नहीं है? हाँ, नामुमकिन बात तो है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं कि दुनिया में कोई बात नामुमकिन है? मिसाल के तौर पर तुम्हारी इन तस्वीरों का मिल जाना मुफ्त में नामुमकिन बात थी, लेकिन मुमकिन हो गई। ये एक लंबी कहानी है और जब कभी तुमसे मुलाकात होगी तो सुनाऊंगा। सरोजनी ने दरवाजे तक आकर मुझे बड़ी मोहब्बत और एक तवील गर्म जोश बोसे से रुखसत किया तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये आंसू तशक्कर के थे। उसे खुश देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो 10 लाख रुपए की रकम देती तो भी मेरी आत्मा को सुकून ना मिलता। मैं सरोजनी के हाथ से निकलकर शांति के दफ्तर पहुंचा। उस वक़्त लंच टाइम हो गया था। मैं शांति की डायरेक्टर सहगल से मिलना चाहता था। उस डायरेक्टर ने जो नई सेक्रेटरी रखी थी, रेखा 20 बरस की जवान, हसीन व जमील और पुरशबाब लड़की थी। उसने जो लिबास पहन रखा था वो साड़ी थी, काली साड़ी, ब्लाउज जिसकी आस्तीनें नहीं थी और वो भी काला था। आगे और पीछे से इस कदर खुला हुआ था कि औरत के दावते नज़ारा था। ऐसा नज़ारा कि निगाह किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह हटने का नाम नहीं लेती थी। जब मैंने उसे बताया कि मैं उसके बाद से शांति के कत्ल की वारदात के सिलसिले में मिलने आया हूँ, तो उसने अपनी नोटबुक में देखकर बताया था कि बॉस बहुत मसरूफ़ हैं, मुझे 1 घंटा इंतज़ार करना होगा। मैं उसी वक्त चला आया था और मैं उसकी इंतज़ार में ख्वार होना नहीं चाहता था।
उस वक्त मिलना ऐसा अच्छा ज़रूरी भी ना था, और फिर मैं रात भर का जागा हुआ भी था। आज पहुंचा तो मेरे ख्याल था कि वो आज भी उस काली साड़ी और ब्लाउज में होगी। वो गोरी थी। उस स्याह लिबास ने उसकी हैबत क़यामत बना दी थी। वो शोले मुजस्सम बनी हुई थी। वो आतिश फशा बनी हुई दहक रही थी, लेकिन आज वो मुझे दिखाई नहीं दी और मैं उसके उसी रूप के तस्वर में पहुंचा था। चपरासी ने बताया कि डायरेक्टर असिस्टेंट तेजनाथ साहब और सेक्रेटरी लंच कर रहे हैं। मैंने सोचा कि बातचीत के लिए ये वक्त ज़्यादा मौजू हैं। ये उस वक्त फुर्सत में है और लंच के दौरान गुफ्तगू हो जाएगी। चूँकि उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, मैं बास के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का लट्टू बे आवाज़ घुमाकर दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। बड़ा पुरतकल्लफ लंच हो रहा था। सेक्रेटरी का लिबास बड़े सोफ़े पर नफासत से तय किया हुआ था और उसके बास का सूट दूसरे सोफ़े पर था, और वो दोनों बहुत दूर निकलकर जवानी के जंगल में भटक रहे थे। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। लंच का वक्फा 1 घंटे का होता है। मुझे 1 घंटा इंतज़ार करना था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि बास को किस बात की कमी थी। जो उसने दफ्तर में ही वक्त गुजारी की, वो उसे होटल ले जा सकता था। बम्बई में ऐसे होटलों की कोई कमी नहीं जहां कमरे चंद घंटों के लिए किराए पर ना मिलते हों। ये वो होटल थे जिनमें ऐसे ख़ास कमरे थे जो सिर्फ दादे ऐश के लिए मखसूस थे। यहाँ ऐसे मर्द आते जिनके पहलू में दोस्त की बीवियाँ, महबूबाएं और दफ्तर की लड़कियाँ होती थीं। बीवियाँ अपने आशिनाओं के साथ आती और होटल के मालकान बड़ी पर्दादारी करते थे। दफ्तर के कमरे में ये मुनासिब ना था। ये शायद आज की बात ना थी, लेकिन आज ये अंदर से दरवाज़ा मुतकफ़ल करना भूल गए थे, शायद इसलिए कि ये मिलाप कुछ दिनों बाद हुआ था। मैं 1 घंटा इंतज़ार करूं, ये नाकाबिले बर्दाश्त था। आधे घंटे बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब का इंतज़ार किए बगैर दरवाज़ा खोला, फिर कमरे में घुस गया। उसकी सेक्रेटरी उस वक्त अपना लिबास और हुलिया दुरुस्त कर रही थी। उसके बास ने मुझे कदरे नागवारी से देखा और उसने बड़े मुहज़्ज़म लहजे में अपने बास से कहा, आप मिस्टर देवा हैं। उस रोज़ बास से शांति के केस के सिलसिले में मिलने आए थे। वो चूँकि बेहद मसरूफ़ थे और आप नहीं थे, इसलिए मुलाकात ना कर सके। आज फिर इसलिए आए हैं। तेजनाथ अपनी टाई की गिरा दुरुस्त करते हुए उठा। मेरा ख्याल था कि वह 50-60 बरस का होगा, लेकिन ऐसा ना था। वो एक खूबरू जवान शख्स था और उसमें ऐसी जाज़बियत और वजाहत थी कि लड़कियों और औरतों के सीने उसे देखकर दहक रहे होंगे, और उसकी उम्र बेमुश्किल 30 बरस की होगी। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। आइए मिस्टर देवा। हम दोनों ने एक दूसरे से बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। तारफ़ी रस्म तो सेक्रेटरी करा चुकी थी। उसने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर उसने बैठकर अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा और कहा कि हम दोनों के लिए काफ़ी ले आओ, मैं उनसे बातें कर लूं और फिर हम बाहर चलकर लंच करते हैं। मिस्टर देवा, क्या आप हमारे साथ चलकर लंच करना पसंद करेंगे? नहीं शुक्रिया, मैं मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा कि इसे कहूं कि आपने जो पुरतकल्लफ लंच किया है उससे कहीं ज़ोरदार लंच करके आ रहा हूं। मेरे चश्मे तस्वर में सरोजनी का चेहरा उभर आया था। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँगा। मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपका नाम किसी की ज़ुबानी सुना था। तेजनाथ अपने ज़हन पर जोर देता हुआ बोला, किस से याद नहीं आ रहा? मिसेस जमुना देवी ने बताया होगा, मैंने कहा। आप क्या उससे वाकिफ़ हैं? क्या उसने बताया था? जी हाँ, मिसेस जमुना देवी ने ही बताया था। उसने असबात में सर हिलाया। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप प्राइवेट सुरागरसा हैं, गौतम के केस में बगैर किसी गर्द के दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए कि इंसाफ का बोलबाला हो। ये बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है किसी को इंसाफ मिले तो उसका बोलबाला हो जाता है। इंसाफ के लिए काम करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। आपके ख्याल में गौतम एक बेगुनाह मुजरिम है, वो बोला, लेकिन प्रेस, मीडिया और पुलिस उसकी बेगुनाही को नहीं मान रही। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद औक़ात आंखें जो देखती हैं वो गलत होता है। मैंने कहा, सारी कार्रवाई एक तरफा है, मुझे पुलिस की कोई परवाह नहीं। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? वो क्या? उसने हैरत से मुझे देखा। बिल्कुल भी नहीं, आप जो कुछ कहना चाहें बरमला कह दें मिस्टर देवा। आपके बाएं गाल और निचले होंठ के नीचे लिपस्टिक लगी हुई है। मैंने हाथ से इशारे से उसे बताया, उसे साफ़ कर लें। वो झीम सा गया और उसने डिब्बे से टिश्यू पेपर निकालकर
लिपस्टिक का निशान को साफ किया। शुक्रिया, वो धीमे से बोला। एक और निशान होंठों के किनारे पर भी है। मैंने कहा, बेहतर है कि आप वॉशरूम में जाकर चेहरा साफ कर लें। वो खेसाना सा हो गया और उसके कमरे में मुल्हका वॉशरूम था। वो उसमें चला गया और उसकी सेक्रेटरी कॉफ़ी लेकर आई और पूछा, बास कहाँ है? उनके चेहरे और होंठों पर लिपस्टिक के निशान थे, वो साफ करने गए हैं। मैंने कहा, मैंने उन्हें बताया था। क्यों, ठीक किया ना? उसका चेहरा सुर्ख हो गया और वो काफ़ी मेज़ पर रखकर जाने लगी तो मैंने उसका मरमरी सडोल हाथ पकड़कर रोक लिया तो उसने हैरत से देखा। आप भी होंठों की लिपस्टिक ठीक कर लें, क्योंकि निचले होंठ की लिपस्टिक सारे बास के होंठों पर सबत हो गई है। उसके कमरे से निकलते ही तेज नाथ आ गया। वो चेहरा धोकर साफ करके आया था और उसने कुर्सी पर बैठते ही कहा, आप गौतम को बेगुनाह समझते हैं। आपकी ये बात मेरी समझ से बालातर है। आप उसे बेगुनाह समझने से क्या होता है? अदालत में उसकी बेगुनाही साबित करनी होगी, ठोस सबूत के साथ। लेकिन आप किस तरह उसकी बेगुनाही साबित कर सकोगे? क्या आपके ख्याल में उसकी बेगुनाही साबित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा? मैंने पूछा, क्या यह नामुमकिन सी बात है? हाँ। उसने मेज़ की दराज से अखबार निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। आपने शायद कत्ल की रुदात तवज्जो से नहीं पढ़ी। उसके खिलाफ ऐसी ठोस शहादतें मौजूद हैं जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मसलन, वो अपना जुमला अधूरा छोड़कर बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। मसलन क्या? मैंने सवालिया नज़रों से देखा। आप बता दें, झिझक क्यों रहे हैं? ऐनी शाहद का बयान, उसने संजीदा होकर कहा और उसके बयान का एक एक लफ्ज़ तेजनाथ का मुंह बन गया। वो चीख चीख कर कह रहा था कि शांति का कातिल गौतम है, सिर्फ गौतम। उससे आपको इत्तेफाक नहीं। आपने ऐनी शाहद के बयान पर एतबार कर लिया। मैंने सवालिया नज़रों से देखा। वो झूठ पर मबनी भी तो हो सकता है। यकीन ना करने की क्या वजह हो सकती है? तेजनाथ ने उखड़े हुए लहजे में जवाब दिया। आज के अखबारात में ये रिपोर्ट शाया हुई है कि पिस्तौल और दरवाजे पर गौतम के हाथ के निशानात मौजूद हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक शांति पर तशद्दुद किया गया और उसकी आबरू रेज़ी भी की गई। क्या इस हकीकत को झुटलाया जा सकता है मिस्टर देवा? तो आपके ख्याल में गौतम के केस में कोई जान नहीं? मैंने कहा, लिहाजा इस केस को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। नहीं, कोई जान नहीं। तेजनाथ ने नफ़ी में सर हिलाया। आप इस केस पर जो मेहनत कर रहे हैं वो वक्त ज़ाया करने के मतरादिफ है। आपने एक लाहासिल केस में हाथ डाला है। आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, आपकी मर्जी। आप बहुत जल्द मायूस हो गए हैं। मैंने कहा, मैं उसके बरअक्स बहुत पुरउम्मीद हूँ। नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। बहुत खूब। उसने कड़वा सा मुँह बनाया और उसके चेहरे पर अज़तराब की लहर दौड़ गई। केस बिल्कुल साफ है। आपने इस केस को हाथ में लेकर अपनी नाकामी में इजाफा किया है, वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं और इससे बेहतर है कि कोई शुभ काम कर लो। आप एक जवान शख्स हैं और एक बहुत बड़ी फिल्म चला रहे हैं। इसके बावजूद आप मायूसी की बात कर रहे हैं। मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ, वो तलखी से बोला। मैं हर केस की एक एक खबर पर उसकी तजज़ियात पर तवज्जो देता हूँ। मैं आंखें दूसरों की तरह नहीं दौड़ाता हूँ। मैं एक सच्चा आदमी हूँ। मैं इतनी बड़ी फिल्म सूझबूझ से चला रहा हूँ। ये केस मुझे कामयाबी से हमकिनार कराएगा। मैंने कहा, आप नहीं जानते कामयाबी की मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। ये आप कह रहे हैं? वो इस्तहज़ाइया अंदाज में कहका लगाकर बोला। मैं इस केस पर जितनी तवज्जो दे रहा हूँ आप सोच भी नहीं सकते। हाँ मिस्टर तेजनाथ, मैंने कहा, आपने शायद कभी किसी मामले में इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी सेक्रेटरी और लड़कियों पर देते हैं। ये क्या कहा? तेजनाथ अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। वो मेरी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखने लगा। जी, आपने बात कैसे कही? क्या ये बात मैंने गलत कही है? मैंने पूछा। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आप अपनी अमारत और वजाहत से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। आप मेरी ज़ातियात पर हमला कर रहे हैं। तेजनाथ जुज़बुज़ होकर बोला। आप अपना क़यास और अंदाज़ा रहने दें। मुझे आपकी ज़ातियात से कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने दरमियान में तेज़ी से कहा। कुछ देर पहले मैंने दरवाज़ा खोला तो आप और आपकी सेक्रेटरी ऐसी हालत में थे कि किसी बात का होश नहीं था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि कबाब में हड्डी बनूं। मैं दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। आपके चेहरे पर जब लिपस्टिक लगी थी वो सारा अफसाना कह दे रही थी और मुझे उससे कोई गर्ज नहीं कि आप अपनी सेक्रेटरी से दिल बहलाएं या साधना के साथ। साधना भी आजकल आपकी कमज़ोरी बनी हुई है। साधना? तेजनाथ ने उछलकर मेरी तरफ देखा
और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आपको साधना के बारे में किसने बताया? फिर आप ये भी पूछेंगे कि जूली के बारे में कैसे जानते हैं, किसने बताया? और वो एक 16 वर्ष की लड़की है। मैंने जवाब दिया। ओ भगवान! तेजनाथ का चेहरा सफ़ेद पड़ता गया और उसकी आंखें हैरत से फटने लगीं। जूली? आप जूली के बारे में भी जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने कहा। और आप उसे गुज़श्ता सेंचर के होटल रोज़ होटल डी सोदा ले गए थे। कमरा नंबर 20 में इतवार की शाम तक रहे। सुहाग रात मनाई थी और उसे सब्ज़ बाग दिखाकर ले गए थे। फिर मैं तवक्कुफ़ करके मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराया। आप सिर्फ 2 लड़कियों के जिक्र पर हवास बागता हो रहे हैं, मैं तो और भी नाम ले सकता हूँ। क्या आप अब भी इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे कि इस केस से ज़्यादा लड़कियों में दिलचस्पी ले रहे हैं? जवानी में बहती गंगा में हर शख्स हाथ होता है, ये कोई नई बात नहीं। मुझे इस बात का एतराफ़ है। उसने मेरी तरफ बेचारगी से देखा और फिर वह फंसी फंसी आवाज़ में बोला, क्या आप एक बात बताना पसंद करेंगे? क्या? मैंने पूछा। आपको एक नहीं 10 बातें दरियाफ़त कर सकते हैं। आपको साधना और जूली के बारे में क्यों और कैसे और कहाँ से मालूम हुआ, और उसका अंदाज सरगोशी का सा था, और जूली के साथ जो होटल में रात गुजारी? मैं आपको किसी और वक्त बताऊंगा, मैंने जवाब देते हुए कहा। मैं गौतम के केस के सिलसिले में बात करने आया था, लेकिन आपने लड़कियों और औरतों का तज़किरा छेड़ दिया, जबकि मुझे हिस्सा लेना पड़ा। साधना की उम्र भी 17 वर्ष की है ना? आपने बात ही ऐसी की थी। तेजनाथ ने नागवारी से कहा। आप इन दोनों की उम्रों से भी वाकिफ़ हैं। हैरत की बात है।